So good morning, student. Today we are going to start from exercise 4.3, question number 8. Now this question number 8 is about relationship between degree Celsius and Fahrenheit. देखिए क्वेश्चन क्या है. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. It is given by F is equal to 9/f इंटू सी प्लस 32. ये एक रिलेशन है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में. ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव. सी दिस इज योर लीनियर इक्वेशन. So it is saying that draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. इसमें कह रहा है कि बेटा you need to draw the graph by taking Celsius scale on x-axis and Fahrenheit scale on y-axis सबसे पहले. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पर हम सेल्सियस को क्या मान लेते हैं. सेल्सियस को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि कह रहा है ना सेल्सियस को आपको किसमें रिप्रेजेंट करना ऑन एक्स एक्सिस. एंड फ़ारेनहाइट को हम यहाँ क्या कंसिडर करते हैं, कौन सा वेरिएबल, y. So now this equation will take the form y is equal to 9/5. In place of c, I am writing x. So this is y is equal to 9/5 into x plus 32. ठीक है बेटा. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन. नाउ अब देखो यहाँ पर ये और चार क्वेश्चंस और पूछ रहा है. इन द सेकेंड पॉइंट इट इज सेइंग दैट if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? करेक्ट. तो यहाँ पर ये देखिए 4-5 क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर ग्राफ तो हमको बनाना ही है, तो ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा है ना ये उन्हीं की रीडिंग से हम क्या करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ बच्चा लोग. तो सपोज दिस इज द बॉक्स ओवर हियर इन दिस मैनर. ठीक है, ये बॉक्स बना लिया अपन ने. अब देखो first what I'm going to write over here is, first I'm writing पहले पार्टीशन कर लेते हैं इस तरह से. अब देखिए so first I'm writing सेल्सियस. ठीक है, और यहाँ पर ने लिख दिया फ़ारेनहाइट. ठीक है. अब देखिए वी आर रिप्रेजेंटिंग सेल्सियस बाय एक्स एंड फ़ारेनहाइट बाय वाई. ठीक है. अब देखो अब आते हैं अपन क्वेश्चन में. Now, what is the first question over here? It is saying that if the temperature is 30 degrees Celsius, so in place of x, what you will write? 30. Yes or no? Because Celsius को क्या represent कर रहा है? X represent कर रहा है ना? So in place of x, we are writing 30, and with that we are going to find the value of y, or you can say degree Fahrenheit. तो यहाँ पर देखो अब अपन ने लिखा when x is equal to 30. ठीक है. So in this equation we are going to replace x by 30. So I'm writing y is equal to 9/5 into, in place of x I'm writing 30 plus 32. Now solve it. 5 1s are 5 6 are. So y is equal to 9 6 are 54 plus 32. So y is equal to how much? 4 plus 2 is 6 and 5 plus 3 is 8. So y is equal to 86. So in Fahrenheit, if the temperature in degree Celsius is 30, then temperature in Fahrenheit will be 86. ठीक है. Now second, इसके बाद third वाला point देखो. If the temperature is 95 degree Fahrenheit, now Fahrenheit is represented by y variable. So this means this time in place of y we are replacing y by 95. ठीक है. सबसे तो यहाँ पर देखो अब अपन ने लिखा when, this was point number 2. अब ये point number 3 अपन solve कर रहे हैं. So I'm writing when y is equal to 95. So in place of y you will put how much? 95. So in place of y I'm writing 95 in the equation. So 95 is equal to 9x/5 plus 32. Correct. Now solve it. Now this 32 from right hand side will be shifted towards left hand side and its sign will become negative. So 95 minus 32, this is equal to 9x/5.
नाउ सॉल्व इट. 95 minus 32. 5 minus 2 is 3. इसको मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ बेटा ना. ओके, सो आई एम राइटिंग 95 minus 32. So 95 minus 32 is how much? 63. So 63 is equal to 9x upon 5. Now 5 will be transferred over here and 9 by cross multiplication ये इसके नीचे आ जाएगा बच्चा लोग. ठीक है, तो देखो अब आगे क्या होगा यहाँ पर, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. So this implies 63 into 5 upon 9. This is equal to x. 9 ones are 9, 9 sevens are 63. So therefore x is equal to how much? 7 fives are 35. So when temperature in Fahrenheit was 95, then temperature in degree Celsius is 35. तो यहाँ पर आप लिख दो 35. ठीक है, ये आपने लिख दिया 35. करेक्ट. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसे में, फोर्थ वन. इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा अपन. ठीक है ना. सो दिस इज पार्ट 4 पार्ट 1. ठीक है, दिस इज पार्ट 4 फोर्थ का फर्स्ट पार्ट. ठीक है ना. सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सो इन प्लेस ऑफ x I will replace x by 0. ठीक है, तो देखो इक्वेशन में हमने रखा. सो y is equal to 9 upon 5 into, in place of x I am writing 0 plus 32. करेक्ट. सो दिस विल गिव अस, इसको सॉल्व करो बेटा. तो देखो on solving it, 0 multiplied by 9 upon 5, that will be 0. So y is equal to 0 plus 32. ठीक है. So y is equal to how much? 32. ये हो गया. ठीक है बेटा, तो y आपका 32 आ गया. तो यहाँ पर लिख दीजिए that when temperature in degree Celsius is 0, then temperature in Fahrenheit is 32. आगे बढ़ते हैं अपन. अब इसी का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. ठीक है, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. अब इसी का देखो उल्टा क्वेश्चन है. इसी में कह रहा है कि इस बार आपको फ़ारेनहाइट को कितना लेना है, 0, और सेल्सियस निकालना है. करेक्ट. तो आप यहाँ लिखिए व्हेन y इज इक्वल टू 0. फिर से वही इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन ये थी y इज इक्वल टू 9 upon 5 into x plus c. In place of y, what you will write? 0. In place of y you will write 0. So this is equal to 9 upon 5 into x plus sorry, this is 9, this is 32. sorry, यहाँ पे 32 है. ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था. प्लस 32. अब 32 को उधर ले जाओ 0 के पास, तो ये हो जाएगा माइनस 32. दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 इंटू एक्स. करेक्ट. फिर ये 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, it will get multiplied by minus 32, and 9 by cross multiplication will come over here. So this implies minus 32 into 5 upon 9. This is equal to x. Solve करिए इसको. So this will give you minus 160 upon 9. So this is equal, so x is equal to minus 160 upon 9. है ना. इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, -17.77 कुछ आएगा. तो ऐसा लिख दो -17.7, या अप्रॉक्स में आप -17.8 भी लिख सकते हो. ठीक है ना. -17.77 आएगा. अप्रॉक्स में आप -17.8 ही लिख दो, ज़्यादा अच्छा. एक मिनट, इसको अपन लिख देते हैं -17.8. ठीक है बेटा, -17.8 अप्रॉक्स. तो ये हो गया हमारा. देखो, तो हमने कहा इफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री, देन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज -17.8. तो मैं यहाँ पर जगह का मैं इधर ही बना देता हूँ. इफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 0, देन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज -17.8. ठीक है, तो ये हमने रीडिंग्स निकाल ली. सही है ना. अब देखो, तो कह रहा है तो अब सबसे पहले अपन आप ग्राफ बना लेते हैं बेटा. ठीक है ना. अपने पास 4 सॉल्यूशंस आ गए. वैसे तो 2 सॉल्यूशन से ही ग्राफ बन जाता है, और यहाँ तो 4 मिल गए हैं, है कि नहीं.
तो चलो ग्राफ बनाते हैं, पर उसके पहले सॉल्यूशंस को मैं लिख देता हूँ। द फर्स्ट वन इज 30,86, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट वन इज 30,86, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, the next one is 35,95, the next one is 35,95, and after that it is 0 comma 32, 0 comma 32, and the last one is minus 17.8 comma 0, ठीक है। ये बेटा बेटा लास्ट वाला पार्ट लास्ट में करेंगे, ठीक है, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो चलो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ पर देखो, अगर हम ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को अगर इसको स्टडी करें, तो एक चीज समझ में आ रही है कि एक्स कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू बहुत ज्यादा है और वाई कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कहते हैं ना टास्क है, वो है स्केल कंसिडर करना, कि हम क्या स्केल लें यहाँ पर, एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे भी। तो देखो बेटर यहाँ पर सबसे अच्छा बताओ, सबसे बेस्ट स्केल क्या होगा बताइए। What scale you will take on x axis and what scale you will consider on y axis? Tell me. हाँ सही है, x और y को अगर आप 10 लोगे ना, तो आपका ग्राफ में आपको दिक्कतें बहुत कम आएंगी, बहुत आराम से ग्राफ बन जाएगा। चलो तो लिखो सबसे पहले स्केल, गिव द हेडिंग स्केल एंड राइट डाउन on x axis, on x axis we will take 1 centimeter equal 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि x एक्सिस पे सेल्सियस स्केल थी, and on y axis 1 centimeter is equal to 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब चलो बनाते हैं बेटा इसको। तो इस तरह से अपन इसको प्लॉट करते हैं, लाइक दिस। y में कहाँ तक जाएगा, 95 तक है ना। x में मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 35, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो y हमारा मतलब वर्टिकल एक्सिस अपनी ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। हल्का सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए। एक, so this is our vertical axis and now I'm going to draw the horizontal axis. This is our horizontal axis. एक मिनट, चलो अब यहाँ पर मार्किंग्स कर लीजिए सबसे पहले तो। दिस इज 0, देन 10, 20, 30, 40, 50 and 60. This is x axis, ठीक है। Over here what you will write, -10, -20, -30, -40. Now over here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and this one is 90, and this one is 100. This is our y-axis. Over here it is -10, ठीक है। तो ये हमने पहले आउटलाइन बना लिया ग्राफ का। अब देखिए द फर्स्ट सोल्यूशन इज 30,86, सो 30,86, दिस इज एट x, दिस इज 30 एंड 86, तो ये कहाँ पर आएगा, दिस विल बी समवेयर ओवर हियर, दिस इज
this point is 30, 86. Then the next one is 35, 95. 35, 95. So 35, this point is 35 and 95 is somewhere over here. इनका perpendicular कहाँ meet करेगा? 35, 95, this point. So this point is 35, 95. Correct? Then 0, 32. 0, 32 is this point. This is 0, 32 and minus 17.8. This will be somewhere over here. Minus 17.8. This is the location of minus 17.8. ठीक है, कॉमा 0. बस अब इनको आप क्या करिए, लाइन से ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, तो एक मिनट, अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन देम. अब मेरा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, पर अगर ग्राफ पेपर में आप बना रहे होंगे तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में पाथ, सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन में आएंगे बिल्कुल. तो ये मैं ज्वाइन करता जा रहा हूँ लाइक दिस. ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा बेटा. ठीक है ना, आ रही बात समझ में? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y is equal to 9x upon 5 plus 32. ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा. ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग बना लीजिए इसको अच्छे से. आई एम गिविंग यू द टाइम. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. देखिए लास्ट वाला 5th पॉइंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, कह रहा है is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? चलो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी. एक मिनट, मैं हल्का यहाँ जगह बना लेता हूँ. हाँ, आंसर्स भी आने लगे. हाँ, -40 होगा बेटा, बिल्कुल सही बात है. वेरी गुड. इसको बस मैं करके दिखा दे रहा हूँ. सुनाओ सी. ठीक है, कह रहा है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? इफ यस फाइंड इट. कह रहा है कोई ऐसा मतलब रीडिंग है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम आए, तो हम ये कह सकते हैं बेटा यहाँ पर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट. आप यहाँ लिखिए लेट x is equal to y. Now what was the equation? Equation was y is equal to 9x upon 5 plus 32. Correct? Now in place of y, I am replacing this y by x. So then now the equation will be transformed to x is equal to 9x upon 5 plus 32. Now solve it. So this will give you, now see this, एक मिनट स्पेस बना ले हल्का. This 9x upon 5 from the right hand side will be transferred towards left hand side. x के पास चला जाएगा. करेक्ट? सो दिस, अब यहाँ पर आप लिखोगे दिस implies x minus 9x upon 5 equal 32. Now take LCM. So LCM is how much? 5. 5 is the LCM. So this thing will become 5x minus 9x equal 32. Now 5x minus 9x, this will give us minus 4x upon 5 equal 32. Now solve them. So by cross multiplication, this 5 will be multiplied by 32 and this minus 4 है ना, will be transferred to the denominator. So this will give us this implies x is equal to
32 into 5 upon -4. So cancel them. 4 ones are 4 eights are. So x is how much? 40 upon -1. And 40 upon -1 is how much? -40. So you can say x is -40. And in the beginning what we have supposed, x equal y. ये देखो यहाँ पर suppose किया ना, x is equal y. So this means, so therefore you can write x equal y. Both have same readings at -40. Both have same readings at -40. ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में, है ना? तो चलो, now we are going to start with the last exercise of this. Okay. Now we are going to start exercise 4.4. The first question in exercise 4.4 is give the geometric representation of equation y equal 3 in one variable as well as in two variables. ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है y equal 3. Now the first question is this equation y equal 3, this is in one variable or in two variable? बताइए जरा. इन वन वेरिएबल, करेक्ट. ठीक है ना? तो देखो इसका हमको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है, तो कैसे करेंगे? देखो वन वेरिएबल में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ही सिंपल है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन. तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, लाइक दिस. सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ओके, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी. अब देखो, एक मिनट. तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, नाउ इन द मिडल ऑफ दिस लाइन what can I take is 0. Now I'll make equal markings over here. एक एक सेंटीमीटर का मार्किंग्स कर लेते हैं. This is 1, this is 2, this is 3, this is -1, this is -2, and this is -3. So this is the line. One variable के लिए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी होती. Now you need to search 3 on this line. So this is the location of 3. So over here, this is geometric representation of y equal 3 in one variable. आई बात समझ में? तो वन वेरिएबल तो बहुत सिंपल है, सिंगल लाइन ड्रॉ किया और जो भी वेरिएबल था उसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट y इक्वल 3 इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब हम इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसके पहले हमें थोड़ा मेहनत करनी होगी. ठीक है बेटा, तो ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट था इसका. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट इन टू वेरिएबल. इन टू वेरिएबल्स. अच्छा, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दैट y इक्वेशन y इक्वल 3, दिस इज इन वन वेरिएबल, और इसको कह रहा है कि टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो. करेक्ट. तो सबसे पहले तो हमें इसे टू वेरिएबल में लिखना आना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में लिख के दिखाता हूँ आपको. तो देखो अभी ऐसा कुछ दिया हुआ है. हाँ, आर्यन ने दे दिया आंसर 0 इंटू एक्स प्लस. हाँ बिल्कुल सही है बेटा. ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसको टू वेरिएबल में कैसे लिखते हैं? बिफोर दिस y नथिंग इज रिटन, तो वी कैन राइट 1. Now over here x variable is absent, so what we can do is we can write x, पर हमें इक्वेशन को चेंज नहीं करना है, तो इसके x के पहले हम इसको यहाँ क्या लगा देंगे? 0. इससे हमारा x क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं. ठीक है, देखो ये 3 को एक्चुअली लेफ्ट से हमें यहाँ क्या करना चाहिए था? राइट से लेफ्ट में लाना चाहिए था, पर क्या है, इसके हमें सोल्यूशन निकालने, इसलिए हम 3 को राइट हैंड साइड में छोड़ देंगे. आई बात समझ में? नाउ सी, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग द सॉल्यूशन, क्योंकि इसे हमें टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस की जरूरत होगी ना? बिल्कुल होगी. तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं, कम से कम 3 या 4 सॉल्यूशन निकालते हैं. तो हल्का मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ बेटा. देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ. ये अपन ने बॉक्स बना लिया लाइक दिस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग सॉल्यूशन. तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं जल्दी से. दिस इज x, दिस इज y. ठीक है, चलो. ओके,
suppose if I'll take x equal 1, then what is the value of y? The question is, if I take x equal 1, what is the value of y? बताइए. 2. बस एक आंसर है, बाकी लोग. if I'll replace x by 1, then what is the value of y variable? रख के देखो ना, बताओ. 3. बेटा 3 आएगा ना, 2 नहीं पॉसिबल है. देखो, x के आगे यहाँ पर क्या लिखा है? 0 लगा हुआ है ना. वॉट एवर वैल्यू यू अज्यूम ऑफ x का आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो, y हमेशा आपको 3 मिलेगा, क्योंकि x के आगे 0 लगा है. तो वो x का कुछ x को आप किसी भी नंबर से रिप्लेस करेंगे तो टोटल तो वो 0 ही ना हो जाना है कि नहीं? यहाँ पर देखो ना, ये इक्वेशन ऐसे लिखी है ना, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3. वॉट आई मीन टू से इज दैट व्हेन यू हैव रिप्लेस्ड x बाय 1, तो ये ऐसा हुआ ना, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3. 0 into 1 is what? 0 plus y equal 3. So what they have given? Y equal 3. तो यहाँ पर तो सीधी बात एक समझ में आ गई, वॉट एवर रियल वैल्यू है ना, by whatever real value x is replaced, you will always get y equal 3. चेक करके देख लो. अच्छा, now suppose if I replace x by 2, then what is the value of y? 3 आएगा. देख करके देख लेना. अगर मान लो -1 से रिप्लेस किया तब क्या आएगा? तब भी 3 आएगा. अगर -2 से रिप्लेस किया तब भी क्या आएगा? 3 ही आएगा. करके देख लेना. ठीक है, चलो. तो सॉल्यूशंस आर, देखो अब सॉल्यूशंस अपन लिखते हैं यहाँ पर. सो सॉल्यूशंस विल बी, एक मिनट बेटा. सो जगह ही खत्म हो गई, चलो इधर बनाते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ देखिए, इस तरफ मैं बना लेता हूँ. Now we are going to represent this equation in 2 variables. Okay, चलिए. चलो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. दिस इज आवर y एक्सिस and this is our x axis. Now take equal markings. This is 1, 2, 3, 4. This one is -1, -2, -3, -4. This is -1, -2, -3, -4. ठीक है, चलो. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? 1,3. यहाँ सॉल्यूशंस भी मैं लिख दे रहा हूँ. 1,3, 2,3, -1,3, -2,3. ठीक है. सो 1,3 विल बी ओवर हियर ना. ये है 1,3. 2,3, ये पॉइंट है 2,3. 3,3 भी इसी तरह से यहाँ पर होगा. -1,3, this will be over here. This is -1,3. -2,3, this is point, sorry, this one is point -2,3. अच्छा, अब देखो मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना. सो सी व्हेन आई ज्वाइन दीज पॉइंट्स, व्हाट आई गेट ओवर हियर. तो चलो ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं इसको. देखो इसको मैंने ज्वाइन किया लाइक दिस. दिस इज अ लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन 0 into x
plus 1 into y is equal to 3. Now there is a question for you. This line is parallel to which axis? This line is parallel to which axis? It is parallel to x-axis, correct? So now you have understood ना? ठीक है? So see, over here देखो यहाँ से एक जनरल बात निकल के सामने आ रही है कि क्या बात समझ में आ रही है कि एन इक्वेशन, देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या थी आपकी, y इक्वल 3 थी ना स्टार्टिंग में, यस और नो? इन द स्टार्टिंग द इक्वेशन वाज y इक्वल 3, तो हम ये कह सकते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म y इक्वल ए, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का है तो वो किसको पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस को। किसको पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस को। समझ में आई बात? ठीक है, यहां पर तुम लोग लिख लेना कि an equation parallel to x-axis is given by y equal a. An equation parallel to x-axis is given by y equal a. ठीक है? Similarly, an equation parallel to y-axis is given by x equal a. ठीक है? An equation parallel to x-axis is given by y equal a. An equation parallel to y-axis is given by x equal a. ये आप लोग नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है? Okay. So today we have completed this chapter. The second part is homework for you. From the next class we will start chapter number 12, Heron's formula. ठीक है, वो एक ही एक्सरसाइज है उसमें, ठीक है? तो कल से हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला